one of the most awaited moments of the day. It's time for our first keynote speaker. He is best known for his prolific career in Indian and international cinema. He has appeared in over 500 films and 100 plays over a span of 35 years, having played and given us many, many iconic characters in critical and commercial hits, including Saransh, A Wednesday, Special 26, Maine Gandhi Ko Nahi Mara, The Accidental Prime Minister, to name a few. His recently released film, Kashmir Files, has been declared as the most iconic film in Indian cinema, having gathered worldwide acclaim and a record-breaking box office collection. Before we bring him to you, I would like to request Mr. Chandresh Vitlani and Mr. Ashish Mehta to please join us on stage. Can we please have you both on stage with us? We're going to have a fun fire chat with our esteemed guest. A warm welcome to both of you. And finally, the moment is here, which we've been waiting for. We're finally going to bring him on stage. But before that, we have a small AV. So can we please have the AV? And our audience, eyes on the screen. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Anupam Kher. Thank you so much. मुझे लगता है हमारे सोफे बहुत पीछे लगे हुए हैं ऑडियंस से. इधर लगा दें यहाँ पर सामने प्लीज, थोड़ा नजदीक रहना चाहिए. Can we have the volunteers on stage? एज इट इज हम फासला बना के रखते हैं, तो कम से कम ये फासला तो कम करें. हो जाए पूरा सबको बुला आगे लेकर. Anupam Kher, best known for his prolific career in Indian and international cinema, has appeared in over 500 films, 540 films, by the way. And 100 plays over a span of 35 years, having played iconic characters in critical and commercial hits. हाँ जी, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ सर? मैं यहाँ बैठ रहा हूँ. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये पीछे वाले ज़्यादा ताली मारते हैं, सामने वाले चीफ गेस्ट होते हैं ना. शिवाय, ओम नमः शिवाय. बहुत बहुत नमस्कार आपको सर. जी जी जी. बहुत बहुत वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आज आप हमारे NAR परिवार के साथ जुड़े हैं. पूरी ऑडियंस
has been very, very excited. We have a very exciting audience in front of us. And I have to say, a genuinely nervous MC, because it's truly an honor to be able to be sitting over here and having this conversation with you. So, Thank you. You should not be nervous at all because it's a conversation and it's not your test. I know, It's an sir. appreciation for you. Thank Don't you worry so about much. that. Thank you. So, of course, when we look at you, we see such a splendid body of work. We पहली see बात तो such... मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ because there is a major traffic jam near the highway, so I'm sorry about being late a little bit. But we are still glad you're here now with us in the moment. So there's nothing that I can say आपके बारे में which has already not been said. But definitely आज मुझे ये moment मिला है जिंदगी का. तो sir, I'm a 90s child. एक मिनट जी। सॉरी मैं आते ही बहुत कुछ बोल रहा हूँ जी। ये बैलेंस थोड़ा सा ठीक नहीं है आप उस तरफ चले जाइए आप इस तरफ आ जाइए हाँ? थोड़ा सा ना थोड़ा आप इधर आ जाइए प्लीज हमारा एक सवाल इस पे है। हाँ ना आप फिर भी वहाँ चले जाइए सर ऐसा पलड़ा ऐसा हो रहा है और हमारा एक सवाल भी इस पे है। आइए ना आप इस तरफ आइए नहीं सीरियसली हाँ ये बेटा हाँ शाबाश आप बीच में रहिए जी, आप बैलेंस बनाने के लिए बैठिए सर शुरुआत करते हैं मैं आपसे बोलना चाहती थी दैट आई एम अ 90s किड और मेरी आपकी पहली मेमोरी आपका काम देखने की आपकी फिल्म्स देखने की वाज यू नो फिल्म्स लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म्स लाइक wow this is what happens 500 films for this moment my god but I always saw you as a very fun loving light character bringing so much brightness on stage you could be a cool dad a friendly you know like a friend जिसके साथ एक आप इतनी lightness एक amazing energy share कर सकते हैं पहले मैंने वो देखा और उसके बाद when I was growing up and I was watching more cinema and then I watched सारांश जो एक्चुअली आपके करियर की पहली फिल्म थी एट द एज ऑफ 29 सो एक लाइट एनर्जी को जब मैंने देखा एक कैरेक्टर देखा और उसके बाद मैंने सारांश देखी सो माई माइंड वॉज ब्लोन आई सेड दिस फ्रेंडली फादर नाउ actually played the role of a father at 28 so sir what was that experience like to and I'm sure कि ये सवाल का जवाब आप इस बारे में बहुत बात भी कर चुके हैं पर इस मंच पे once again we would like to know कि जब आप वो फिल्म कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था ऐसा नहीं है कि सवाल का जवाब बार बार सेम है क्योंकि ज़िंदगी सेम है तो सवाल के जवाब भी सेम होंगे मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे कि व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट सो एवरी टाइम यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन और एनीबडी विल आस्क मी अ क्वेश्चन माय स्टोरी इज द सेम बट द स्टोरी इज इंस्पिरेशनल सो व्हेन आई केम टू बॉम्बे ऑन द 3rd of June 1981 तो मैं हालांकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था मैं प्लेस कर चुका था मैं 4 साल की ट्रेनिंग कर चुका था मगर this is a very dignified sexy bald look but when you are losing here इनको पता होगा और बहुत सारे लोगों को बैठे अंदर पता होगा कि एक स्टेज ऐसी आती है जब आधे बाल यहाँ से गिरते हैं आधे यहाँ से गिरते हैं तो उस स्टेज पर बॉम्बे में आना 80s में early 80s में and wanting to be an actor was a very tough thing to say because people used to say नहीं एक्टिंग तो आपको आती है मगर आपके बाल नहीं तो बाल मोर इम्पॉर्टेंट थे जब टैलेंट से सो इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट पीपल यूज टू से कि आप राइटर बन जाइए आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए मगर आई हैव ग्रोन अप इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली बट इन अ जॉइंट फैमिली तो जॉइंट फैमिली में रहने के फायदे ये होते हैं कि कोई ना कुछ सिखाता रहता है अगेन माई ग्रैंड फादर यूज टू से दैट व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू आर ऑनेस्ट आपको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है तो मैंने सोचा कि मैं काम करूँगा मैं ढूंढूंगा काम बहुत मुश्किल था 3 साल लगे मुझे सारांश को प्राप्त करने में बट सारांश जब मुझे मिली तो भट्ट साहब ने कहा कि पहला तो तुम्हारा बेस्ट फ़ायदा तुमको ये हो रहा है कि यू डोंट हैव हेयर इसलिए आई कैन गिव यू सारांश मैंने कहा ये क्या बात हुई आपने मेरा टेस्ट तो देखा नहीं है कहते नहीं तुम्हारी आंखों में लगता है सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आपने पहली फिल्म एज एन ओल्ड मैन क्यों की यू आर 28
पर अगर सारांश आपने देखी है या जिन लोगों ने भी देखी है, तो मुझे पता था कि 40 साल बाद भी पहला सवाल मुझसे सारांश के बारे में एंकर करेंगी। ये इसलिए मैंने वो फिल्म, बिकॉज वो फिल्म बहुत कमाल की है। वो फिल्म नहीं है, फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका है। जब मैं सारांश की शूटिंग कर रहा था, उस कैरेक्टर का नाम बीवी प्रधान था, और मैंने सोचा कि जब मैं 40 साल बाद इस कैरेक्टर को अगर एक्चुअली जीना शुरू करूँगा कि जिस तरह का वो इंसान था, फियरलेस, बिलीविंग इन ऑनेस्टी, कंपैशनेट, आई वुड लाइक टू बी लाइक बीवी प्रधान, एंड आई थिंक आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। आपको यूजुअली पहली फिल्म जैसा बनने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो सारांश ने मुझे ना सिर्फ मेरा करियर दिया, बल्कि मुझे जीने का एक तरीका भी दिया, जीने की एक फ़िलॉसफी दी, और वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। Thank you, sir. आपको can we have? सर अभी इसी कनेक्शन में क्वेश्चन, हमने बैलेंस तो कर लिया, मैं ये साइड आ गया। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया कि आपको यहाँ से सवाल पूछने की आदत थी और आप वहाँ चले गए? मेरा राइट साइड रहता है। ऐसा तो नहीं है। इसी कनेक्शन में आपने हमेशा ही बोल्ड लुक रखा हुआ है। सो और फिल्म में जैसे आपने बताया कि रोल ज़्यादातर हीरो का पोर्ट्रे ऐसा होता है कि हाँ बड़े अच्छे बाल हैं, यू नो बॉडी है, दैट्स ऑलवेज अ पोर्ट्रेट ऑफ एन हीरो जनरली इन अ फिल्म। सो आपको कभी लाइफ में या इतने आपके करियर में कभी ये चीज़ की दिक्कत है, कभी ये चीज़ की इशू कोई भी फिल्म रिलेटेड है कभी आई कि हाँ ये बोल्ड लुक रखा तो आपको आपने हमेशा जनरली क्लीन शेव करवा दिया? इनफैक्ट इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। यू ग्रो अप, यू आर मेड टू फील कि बाल नहीं निकलने चाहिए। बट आप मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो वो अब मैं कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी इज़ व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, बट उस कंफर्ट लेवल तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। बहुत परेशानी होती थी, लोग कहते थे अरे बाल झड़ रहे हैं, और इस पर मैं एक स्टेज पर आइटम भी करता था, उसका नाम बालचंद था, कि बाल झड़ने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जब शुरू में बाल निकलते हैं आपको तकिए पे, तो आपको लगता है कि आपके भाई के बाल हैं, भाई के बाल निकल रहे हैं। फिर बट धीरे धीरे मुझे लगा कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आपकी काबिलियत। यू कैन हैव मेनी हेयर एंड यू कैन बी अ बैड एक्टर, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि हर बाल वाला अच्छा एक्टर है। और फिर मुझे मेरा एक्टिंग का टीचर कहता था, बेटा उन्नत ललाट होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक, मेरा तो यहाँ से यहाँ तक है। बट ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू हैव कॉम्प्लेक्सेस, आई यूज्ड टू हैव, मैंने सब चीज़ें इस्तेमाल की है। अब इसको छोड़ दीजिए, आप मेरे जवाब सुनिए, टेंशन मत लीजिए, सब सही सवाल पूछेंगे आप। मैंने सब कुछ कोशिश की, आपने भी किया होगा, मतलब ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, ये पानी के अंदर, मैंने तो सब कुछ किया सर, कुछ भी आज तक। हाँ, तो सब कुछ इस्तेमाल किया। बट देन माई पावर इज दैट टुडे बीइंग बॉल्ड इज इन फैशन, यू नो। एंड अब आप इमेजिन करिए, मैं यहाँ पर विग लगा के आता, तो आप सारे लोगों को भी पता है मैंने विग पहनी हुई है, मुझे भी पता है, मुझे एसी के शाफ्ट से डर लगता कि कहीं उड़ तो नहीं जाएगी, है ना। मैं लोगों से ऐसे बात करता। मेरे चाचा जी जो जब नए नए उनकी शादी होने वाली थी, तो वो यहाँ से यहाँ बाल लेके आते थे, यहाँ से यहाँ लेके आते थे, यहाँ से यहाँ लेके आते थे, तो फिर उस पर स्प्रे करते थे। तो मेरी चाची को देखने जा रहे थे वो एक दिन शादी लड़की के लिए, तो रिक्शे में जा रहे थे हम पटियाला में, तो सडनली मैंने देखा कि चाचा जी ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा चाचा जी क्या कर रहे हो? कहते हवा चल रही है, हवा की तरफ रुख कर रहा हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा बेरहम हो गई, तो वो सारे बाल उनके बिखर गए और बीच में हेलीपैड जैसा आ गया। सो आई थिंक what you think is your shortcoming becomes your shortcoming, but what you think is your asset becomes your asset. Very well said. हम अनफॉर्चुनेटली हम उस दौर में रह रहे हैं, हम मार्केटिंग के दौर में रह रहे हैं, जहां पर आप अपनी खुशी दूसरे के हाथ में रख देते हैं कि इसको मैं पसंद हूं कि नहीं, या हाउ विल ही और शी लाइक मी।
मैं अपनी खुशी अपने हाथ में रखता हूँ। आपको बार बार लोग इस बात का एहसास कराएंगे कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। अगर आप उस कमी को दुनिया के सामने बता दो तो फिर दुनिया आपको किस चीज़ से डराएगी, है कि नहीं? दुनिया आपको डराती है कि आप लगते ऐसे हो दिखने में, दुनिया आपको डराती है आपके पास पैसे नहीं है, दुनिया आपको डराती है। आई एट ए वेरी अर्ली स्टेज लर्न फ्रॉम लाइफ दैट देर आर ओनली 3 to 4 to 5 पीपल हू मैटर, जिनकी ओपिनियन मैटर करनी चाहिए। बाकी सारी दुनिया को खुश करने आप जा ही नहीं सकते। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है। तो मैं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता कि सब लोग मुझे पसंद करें। अगर आप ऑनेस्टी से बात करेंगे तो सब आपको शायद पसंद करें, तो आप टेंशन मत लीजिए। नहीं सर, और लेता आज नहीं तो वैसे आपने भी। बिल्कुल सेंटर पार्टिंग जो निकाली है, हैं? बिल्कुल कोई नहीं करेक्ट है। निकाली सर मैंने, हाँ, इसलिए ना कोई ट्रीटमेंट करनी। सॉरी हुई जी। ये देखिए इस तरह बाल ही बाल हैं, बहुत घने बाल हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं कि देयर आर ओनली 2 kinds ऑफ men इन दिस वर्ल्ड, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। सुपर, थैंक यू फॉर द आंसर सर। या सर, मैं आप एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियो में भी सुना है, तो आपका एक हमेशा एक कोट रहा है, फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को और हमको थोड़ा समझाएंगे सर कि लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आती है। यहाँ पे सारे रियल्टर्स बैठे हैं, लॉकडाउन में भी कोई थे जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया और कोई थे जो बहुत दुखी भी हुए हैं और बहुत परेशान भी हुए हैं। तो आपका ये जो टैगलाइन है, तो उसमें थोड़ा सा हमको क्या मोटिव मिल सकता है और क्या मोटिवेशन लेना चाहिए, तो थोड़ा गाइड करेंगे सर। मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था। मेरी जिंदगी में कभी 38% से मार्क्स ज्यादा नहीं आए, कभी भी नहीं, मतलब मेरे फॉर्मल एजुकेशन में। चलो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं? 50 से ज्यादा, ऑलमोस्ट एवरीबडी। 60 से ज्यादा कितने लोगों के आए? ईमानदारी से खड़ा करो। माय गॉड, ऑलमोस्ट 70% ऐसा बोल रहे हैं। 70% से ज्यादा कितने लोगों के आए हैं? वाओ, फिर भी आप नीचे बैठे, मैं यहां बैठा हूं। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो चुका। नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी पढ़ाई की भी बहुत इज्जत करता हूँ, एंड आई थिंक यू आर मच मोर एजुकेटेड देन आई एम। बट वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि मेरे लाइफ से मेरे पिताजी ने फेलियर का डर बहुत कम उम्र में निकाल दिया था। मैं 15 साल का था या 14 साल का था, मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो मुझे, जैसे आप लोगों को भी होता है, रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स से साइन करवानी पड़ती है कि रिपोर्ट कार्ड आपको मिलती है। फिर आपके टीचर जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी और आपकी माताजी जानते हैं ना कि आपने कितने एग्जाम्स में कितने मार्क्स हासिल किए। तो मुझे बड़ा डर था कि मैं अपने पिताजी को, माताजी तो मारती थी और गुस्से हो जाती थी, तो इसलिए मैं पिताजी से साइन करवाता था। तो मैं ये मौका ढूंढता था कि पिताजी कब जल्दी में होंगे तो मैं कहूँगा पिताजी मेरी ये रिपोर्ट कार्ड है, और जल्दी में जाते जाते साइन कर लेंगे बिना देखे हुए। एक दिन वो ऑफिस में जाने के लिए तैयार थे और मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड उनको दिखाई, तो सडनली उनको याद आया कि वो अपनी चाबी ऑफिस की भूल गए हैं। फिर वो चाबी लेने गए, फिर उन्होंने ध्यान से रिपोर्ट कार्ड देखी और बोले, तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कितने स्टूडेंट है क्लास में? मैंने कहा 60। अब मुझे लगा ये गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, मारा उन्होंने कभी नहीं था मुझे, बट उनका गुस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मगर उन्होंने एक लंबा पॉज लेने के बाद बोला, एक बात तो है बेटा, जो इंसान क्लास में फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 28th आ सकता है, 17th आ सकता है। तो एक काम करना, अगली बार तू 49th आ जाना। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली कि याद रखना, फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, पर्सन थोड़ा फेल होता है जब तक हम खुद ना मान लें। अब जैसे यहां पर माइक चलना बंद हो जाए, नहीं बंद नहीं होगा, फिक्र मत करिए, टेंशन मत लीजिए। माइक चलना बंद हो जाए तो मैं आगे आके आपसे जोर जोर से बातें कर सकता हूं, है कि नहीं? सो इवेंट फेल होता है,
इंसान फेल नहीं होता जब तक इंसान इस बात को मान ले कि मैं फेल हो गया हूं। तो अगर 14 साल के या 15 साल के एक लड़के का डर फेलियर के प्रति उसका पिताजी निकाल दे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं डरा सकती। एक और किस्सा है, बड़ा अच्छा किस्सा, मैं आपको सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मैं 10th स्टैंडर्ड में था, जो बोर्ड का एग्जाम होता था शिमला में, और हमारे यहाँ क्या होता था कि 10th का एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट 2 महीने के बाद आता था, लेकिन आपको 11th में प्रमोट कर देते थे, आप 11th में बैठते थे। 2 महीने बाद रिजल्ट आता था, और अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस 10th क्लास में बिठा दिया जाता था। तो ये बड़ी बेइज्जती वाला प्रोसेस था। तो ये एक कहानी का एक पहलू है। दूसरी कहानी का पहलू ये है कि हमारे शिमला में मैं जिस परिवार में रहता था, हम 14 लोग थे और इतनी छोटी सी जगह में रहते थे, छोटी सी एक कमरा था। और उस छोटी सी जगह में दादा दादी, चाया जी वगैरह, और हमारे शिमला में एक रेस्टोरेंट था, अल्फा रेस्टोरेंट, जैसे यहाँ पर कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट, जो अल्फा रेस्टोरेंट बड़ा अमीर रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई और मैं, हम 6 महीने में एक बार जाते थे, सिर्फ 4 लोग, उन 14 लोगों में से 4 लोग। तो हमारे लिए वो जो दिन था वो दिवाली से बड़ा होता था, होली से बड़ा होता था, क्योंकि हम 4 सदस्य जो थे वो साथ में होते थे। और वहाँ पर फिक्स्ड मेन्यू होता था। मेरे पिताजी ऑर्डर करते थे मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी, और जब बिल आता था तो मेरे पिताजी 50 पैसे टिप देते थे बैरा को। अब 2 महीने पहले हम अल्फा रेस्टोरेंट जा चुके थे। अब मेंटली हमें को पता था कि 4 महीने बाद जाना है, और मैं 10वीं क्लास से 11th में बैठा था। तो एक दिन पिताजी 3 बजे के करीब स्कूल में आए और बोले कि चल छुट्टी कर ले। मैंने कहा पिताजी बड़ा कमाल कर रहे हैं, मुझे स्कूल से भगा के ले जा रहे हैं। एनीवे मैं आया, बाहर निकला तो बोले कहाँ चलेगा चाय वाय पीने। तो मुझे लगा कि अल्फा रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ तो 2 महीने पहले गए थे, वहाँ तो 4 महीने बाद जाना है। तो मैंने कहा नथू स्वीट्स चलते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अल्फा चलेगा? तो मैंने कहा अल्फा तो भी गए थे। कहते नहीं नहीं चलते हैं। तो हम दोनों वहाँ गए, और फिर मुझे लगा कि अब ये सारी चीज़ें नहीं मंगाएंगे, जो 3 मंगवाते हैं उनमें से कोई एक चीज़ मंगाएंगे। मगर उन्होंने मेरे लिए भी और अपने लिए भी पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई। और जब बिल आया तो 50 पैसे की जगह 1 रुपया बिल टिप रखा। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा क्या हो गया, आपकी कोई प्रमोशन हो गई है, लॉटरी लग गई है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो कहते हैं मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करवाने, तू फेल हो गया है। मैंने कहा फेल हो गया हूं, तो ये फिर आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूं, ताकि जिंदगी में तू कभी भी फेल हो तो मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगा सकता है। हम लोग बहुत हम आजकल, खासकर आजकल के दौर में आपको फेलियर का एहसास बहुत बार कराया जाता है। फेल हो जाएंगे, अरे फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस इज वन डायमेंशनल, फेलियर इफ टेकन राइटली इज मल्टी डायमेंशनल। वो रास्ता चलने का क्या फायदा जिस पर उतार चढ़ाव ना हो, जिस पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो, जिसमें खाइयां ना हो, जिसमें काटने ना हो। मजा तो तब आता है ना कि आप मंजिल पे पहुंचे और आपने पलट कर देखा और बोला क्या मुसीबतों से, क्या मुश्किलों से चलकर मैं यहाँ आया हूं। आप कहेंगे कि मैं सीधा ही आ गया यहाँ पर, तो क्या फायदा उसका। सो आई ऑलवेज फील माई लाइफ इज द सम टोटल ऑफ माई फेलियर्स। आई ऑलवेज बिलीव एंड ऑल्सो इट रिलैक्सेस मी ना, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। आपने कहा मैं नर्वस थी, क्या हो जाएगा, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट यू विल बी योरसेल्फ। Nervousness is a great energy. To be nervous is a great feeling. That means nervousness is productive. मैं अभी भी नाटक करता हूँ, प्ले करता हूँ, 400 शोज कर चुका हूँ, मगर मैं जिस दिन मेरा शो होता है, नाटक होता है, प्ले होता है, उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं नर्वस होता हूँ। जिस दिन मैं नर्वस नहीं होता हूँ, शो बुरा होता है। सो ऑल दीज क्वालिटीज को हवा बनाया हुआ है। रिलैक्स कर, रिलैक्स, अरे क्यों रिलैक्स करूँ भाई। सो आई एम फेलियर teaches you much more. You know, the problem is that we are always trying to make other people happy. कि उसका क्या रवैया है जिंदगी के प्रति, आपका क्या रवैया जिंदगी के प्रति, वो है फिलॉसफी आपकी लाइफ की, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। सर वी वुड, आप अभी हम बात कर रहे थे अबाउट फेलिंग, अबाउट फेलियर, द फियर ऑफ फेलियर।
मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल रेलेवेंट, बट यू फियर्ड लूजिंग योर मेमोरी. Yes, आपने एक ऐसी चीज मेंशन करी थी. yes, yes. डू यू स्टिल फील दैट? I feel that. वो failure, you see, problem क्या होती है, as you grow younger, in the sense of that, as you grow older or as you grow younger, there is lot of information gets stuck here. It's like computer में कितना आप feed करते हो, उसके बाद आपको delete करना पड़ता है. पर लाइफ में memories delete नहीं होती हैं. और मेरे बहुत सारे, खासकर जब दिलीप साहब को मैंने देखा कि उनकी मेमोरी चली गई थी, he suffered with Alzheimer's, that put a fear on me. Then I read Ronald Reagan's autobiography. There are lot of people that I did a film called मैंने गांधी को नहीं मारा. For that I researched about Alzheimer's. So it does have a feeling that sometimes I have this fear that what if I do not know I am Anupam. That is a fear. अभी मैं एक कैलकाटा में ऐसे किसी लेक्चर के लिए गया था, वहाँ पर एक 80 साल के बुजुर्ग थे जिनको ये फियर है, आई होप आई डोंट बिकम लाइक दैट, कि उनको सब कुछ भूल गया है, तो सब कुछ याद करते रहते हैं. मेरे कज़न ब्रदर का नाम ये है, आई हैव नॉट रीच दैट स्टेज एज येट, एंड आई विल डोंट थिंक आई विल रीच. सो मुझे लगता है कि भूल गया तो भूल गया. खासकर वो रिसर्च नहीं मुझे करना चाहिए था वो अल्जाइमर का, जो मैंने गांधी को नहीं मारा के सेट पर किया. मैंने गांधी को नहीं मारा में मेरा जो कैरेक्टर है वो अल्जाइमर्स है, और मैं उसको प्ले करने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहता हूँ. तो मैंने अल्जाइमर्स पे बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिनके रिश्तेदारों को अल्जाइमर था. अल्जाइमर में क्या होता है कि आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, द आईज आर वेरी वेकेंट, इट इज़ नॉट. सो आई टू गेट दैट थिंग वाज वेरी डिफिकल्ट. अब वो किताबें मैंने इतनी पढ़ ली कि अब जब मैं कुछ भूलता हूँ तो मुझे लगता है कि पेज नंबर 127-67 पैराग्राफ में ये लिखा था कि व्हेन यू, तो इसलिए. बट दैट्स अ फियर विच आई थॉट आई लाइक टू टॉक अबाउट. बट कमिंग बैक टू फियर ऑफ फेल, द फियर ऑफ फेलियर इज बिगर देन द फेलियर इटसेल्फ. My grandfather also used to say, don't go through a problem twice. Once by thinking about it and once by going through it. हम 5-6 बार जाते हैं प्रॉब्लम से. So, जैसे अभी जो सामने पहली लो में जो भाई साहब बैठे हैं, ये फ़ोन पे लगे हुए हैं इतनी देर से भाई साहब. जब भी बहुत सर छोड़िए ना, इस ज़िंदगी को मज़ा लीजिए यहाँ पर. आइए अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए. Nice to meet you. इस मोमेंट पे मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. That's our honorable chief guest for today. Nice phone. अब किसी का फोन आया तो मैं जवाब देने वाला हूँ सर. No, what I'm trying to say, I'm not trying to make you conscious or Not at all, bring not it at anything. My point is that life is what happens to you while you are planning other things. Very true. You see, Very we true. are so stuck with मैंने तो अपनी जिंदगी के 40 साल बिना फोन के गुजारे हैं. मेरे को भी सेम प्रॉब्लम होती है सर. मेरे को होता लगा कि किसका मैसेज आ गया, मगर फॉर 1 hour लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. दैट्स द बेस्ट वे टू अवॉइड फेलियर. So that means, sir, in continuation कि of course we can have आपने इतना पढ़ा और वो कहीं ना कहीं आपको impact रह गया, तो that means whatever we feed to our mind, to our brain, we land up manifesting that. I think. I'm not a worrier, I'm a warrior. Of course. So there is a difference between worrier and warrior. I That's a beautiful don't worry, statement. and I'm very lucky to have been born in a joint family. Joint family में कोई ना कोई शिक्षा देता ही रहता है, चाहे वो important हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ बोलता रहता है. मेरे दादाजी दादी जी रोज शाम को हमारे को, वो भी भाई साहब एक जो सामने वाली रो में बैठे हैं ब्लू में, छोड़िए ना सर क्या बात कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट है. मेरे में जो बातें नहीं, सुनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुन के ज़्यादा रहेगी, लिखने से कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है. छोड़ दीजिए, मज़ा आएगा, बहुत मजा लीजिए. 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन. और क्या बोलने वाले के लिए भी डिस्ट्रैक्टेड होता है. फ्रंट रूम में बैठा आदमी, जो मैं बातचीत किए जा रहा हूँ एक आदमी, तो मेरे लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है. दैट्स ऑल, नथिंग टू, नॉट टू बी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड टू एनीबॉडी. यस सर, जैसे आप उठ के गए और एक्टर जो है ना, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, एक्टर जो होता है वो शादी के घोड़े की तरह होता है. जब तक उसके आगे डांस ना करो, घोड़ा आगे चलता नहीं. So
यस सर जैसे आप उठ के गए हमारे चीफ गेस्ट के पास, आपने उनसे मोबाइल ले लिया, तो अगर ये हो सकता है तो मुझे कुछ लगा मैं चीफ गेस्ट हूँ, आई एम सो सॉरी सर। That's fine. I'm just joking, I'm just having fun. अरे सर पहले बताया होता तो क्या कर दिया इसीलिए आपने, बता दिया गड़बड़ सर। कर। सो अगर ये हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्या सर, मुझे अपने एंड तक बोलते रहे चीफ गेस्ट आप हो, चीफ गेस्ट आप हो। अरे यार कुछ भी हो सकता है। तो सर आपका एक हमेशा कोट रहा है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और आप देखिए मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चीफ गेस्ट मुझे वरना इतना याद नहीं करते, लेकिन आज के बाद ये मुझे रोज या हफ्ते में एक बार तो याद करेंगे, और मैं आपका नंबर भी ले लूंगा, आपके घर पे आके खाना भी खाऊंगा अगर आप बुलाएंगे तो, पक्का। थैंक यू। हाँ जी सर जैसे आप हमेशा कहते हैं दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आपका ये कोट काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी आपकी स्पीच में रहा है, तो आप इसके पीछे हमारे रियल्टर्स भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको क्या, पहले तो आप मुझे बता दो कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग कौन है यहाँ बैठे हुए क्योंकि मैं और किसी से इस तरह की बात नहीं करना चाहता। और कौन कौन है? सर पहली दोनों सब इम्पोर्टेंट है। अरे बाप रे, मेरे लिए तो पीछे वाले इंपॉर्टेंट है। सर पीछे और पीछे जितने हमारे रियल्टर्स भाई बैठे हैं सब हमारे डेलीगेट्स हैं। पीछे वाले पैसा दे के टिकट खरीद के पिक्चर देखने जाते हैं। सब रजिस्टर्ड करके आए हुए हैं। नहीं। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। सो गड़बड़ ये हो गई हमेशा आज। आपका कोट रहा है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हाँ, और कुछ ये भी हो कोट के सकता पीछे आप है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या सारांश? कुछ भी, मैं 2004 में, बिकॉज आई वॉज वॉन्टिंग टू बी एम्बिशियस, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ बी ए बिजनेस मैग्नेट, मैं अपने पूरे परिवार में पहला इंसान था जिसने 10,000 रुपये साथ में देखा था। हम छोटे परिवार, मैंने बताया कि 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, तो हम बड़े खुश रहते थे, हम खुश थे। और मैं सोचता था कि, तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो आई थॉट, तो एक तरफ दादाजी ने इस बात का डर निकाल दिया कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, दूसरी तरफ पिताजी ने बोल दिया कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर पर्सन। तो मुझसे ताकतवर, मुझसे खुश इंसान तो कोई है ही नहीं। और फ्रैंकली स्पीकिंग 38% मार्क्स लेने वाला एक क्लर्क का बेटा 37 रुपीज लेकर बॉम्बे में आने वाला, अगर आपके लोगों को मोटिवेशनल लेक्चर दे सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके चीफ गेस्ट का फोन लेकर यहां रख सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में ये एंगल आ सकता है। हम अपनी लाइफ को कुछ भी हो सकता है कि मैजिक से भूल जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। हर एक की, आप में से हर एक की, और खासकर जो आगे जिन्होंने अचीव किया लाइफ में बहुत कुछ, जो आगे बैठे हैं, इनकी हर एक की लाइफ पर एक बायोपिक बन सकती है। ये कहाँ से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की होगी, फिर कैसे मुश्किलों से पढ़ाई की होगी, फिर कहाँ आज जो पोजीशन इन्होंने हासिल की है, ये कितने कम लोगों को हासिल होती है। तो ये बायोपिक है इनकी लाइफ का। हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ ने इस दौर से गुजरकर यहाँ पे पहुँचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कभी नहीं भूलता कि मैं शहर में 3 जून 1981 को 37 रुपये लेकर आया था, और आज 37 रुपये से तो ज़्यादा अमीर मैं हूँ। तो जब वो 2004 में मैं टाइकून बनना चाहता था, तो मुझे पता नहीं था, पैसों का आइडिया था नहीं, तो मैंने पैसे, मैं वो करता था, क्या नाम इसका, बोरो किया मैंने इंटरेस्ट पे। और एक दिन फिर मेरा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बोला कि सर बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। और मैंने कहा अच्छा, तो घर भी गिरवी है और ऑफिस भी गिरवी है। तो आई सडनली रियलाइज कि ओ माय गॉड, अच्छा
परसेप्शन बिकॉज ऐसा था क्योंकि मेरी फिल्में रिलीज होती जा रही थी, तो तब मेरे को दो वेरी फेमस पब्लिशिंग हाउसेज ने बोला कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। और ऑटोबायोग्राफी मैंने कहा मैं तो लिखता नहीं, कहता नहीं बोल दीजिए हम उसको ट्रांसक्राइब कर देंगे। तो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months अपने जीवन के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने लिखी। तो वो 10 घंटे का टेप इकट्ठा हो गया। तो फिर एक दिन मैंने 2-3 मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ 3 days मैंने वो अपनी लाइफ के बारे में सुना कि मैंने क्या से। जब मैंने सुना तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने हर फेलियर के बारे में बोलता जा रहा हूँ और उस पर हंस रहा हूँ। वो 10 घंटे का प्ले जब मैंने सुना, प्ले घंटे का टेप जब मैंने सुना, तो मुझे लगा मैं एक्टर हूँ, मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं इसको परफॉर्म करूँगा। और उस जीवन की अगर मुझे एक हेडिंग निकालनी थी तो मुझे लगा कि ये तो यही हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे मार्क्स कभी नहीं अच्छे आते थे। इनफैक्ट मैं दौड़ में भी अच्छा नहीं था, खेल कूद में भी नहीं। एक दिन ये सच बात है, मेरा पीटी टीचर, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मैं दौड़ रहा था अपने ग्राउंड में, पीटी ग्राउंड में, तो मेरा पीटी टीचर मुझे बोला रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। तो हमारी जिंदगी के जो फेलियर्स हैं हमको वो याद रहते हैं, सक्सेस थोड़ा याद रहती है कि फिर मैंने 5,000 करोड़ कमाया, फिर मैंने 200 करोड़ कमाया। नहीं भाई साहब, मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, फिर मैं नेशनल ढाबे में गया, ये कहानियां याद रहती हैं। एंड दोज आर द स्टोरीज विच शुड इंस्पायर यू। सो कुछ भी हो सकता है, कम्स फ्रॉम दैट। मेरे कुछ भी हो सकता नाटक की पहली 4 लाइन्स जो हैं वो ये हैं कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट दोनों का बर्थडे कल था। अगर एक 10 साल का बेटा, 10 साल का लड़का रोज नदी पार करके स्कूल जाया करता था पैदल, वो आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक चाय वाला अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। आज से 3 साल, वही मैं कह रहा हूं, आज से 5 साल पहले आपको किसी ने बोला होता भाई साहब आपको कि आप अनुपम खेर के साथ मंच पे बैठे ऐसे बात कर रहे होंगे, आप कहते क्या बकवास कर रहा है, मगर आज आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। सर आपकी फिल्म द शौकीन्स में जब वो फिल्म आप शूट कर रहे थे तो इसमें मैंने एक बहुत ही छोटा सा किरदार किया था। मैं बहुत आपको बोलने वाला था मगर फिर मैं चुप हो गया। मुझे लगा कि यार अब छोटे के किरदार के बारे में बात नहीं करना चाहती। हम वो मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ इसी कॉन्वर्सेशन के कंटिन्यूएशन में जी। मैं 17 साल की थी तब जी। उस दिन डेफिनेटली ये मैंने कभी नहीं सोचा था कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता। आज मैं मान गई कि कुछ भी हो हम नहीं सोचते। जब मैंने रॉबर्ट डी नीरो के साथ काम किया था मैंने जिंदगी में ही कभी नहीं सोचा। अच्छा मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ और हमारे को 5th स्टैंडर्ड में ABCD सिखाई जाती थी। तो जब मैं बॉम्बे मैं पढ़ सकता था, आई वॉज अ वेरी वेल रेड पर्सन, सडनली मैं अंग्रेजी में बोलने लगा तो मैं पढ़ सकता था, मैं रशियन लिटरेचर के बारे में, अमेरिकन लिटरेचर के बारे में, प्लेस के बारे में, मगर मैं बोल नहीं सकता था। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं बॉम्बे आया, मुंबई आया। मुंबई में मुझे लगा कि यार लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। तो मैंने अपने खानदान में एक ही ग्रेजुएट थे हमारे चाचा जी, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा चाचा जी मुझे अंग्रेजी सीखनी है बोलना। तो कहते बेटा कोई भी लैंग्वेज बोलने से ही सीख सकता है, तू डिसाइड कर ले कि तू अंग्रेजी बात करेगा। तो मैंने तय कर लिया कि मैं रोज 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अंग्रेजी में बात करूंगा। तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे सारे दोस्त भाग जाते थे, आ गया अंग्रेजी में बात करने आ गया। बट इट डिड हेल्प मी। तो वो हुआ। देन आई डिड एन इंग्लिश फिल्म, देन आई डिड इंग्लिश सीरीज। सो कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है बिकॉज वी लिव अ मीडियोकर लाइफ। But everybody is superior. Everybody, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. So for people who sitting behind,
You need to work a little extra to become like this, to become extraordinary from there to here. So work hard. So talking about your huge success also internationally, you are an international star. Is it something जो आपने किया था aspire? Is it something that you were looking सपने at? बदलते रहते हैं जी, जी. सपने बदलते रहने चाहिए। जब मैं शिमला में था तो मेरा सपना था कि मैं जिस दिन शिमला से चंडीगढ़ चला जाऊंगा बहुत बड़ी बात हुई। फिर मैं चंडीगढ़ चला गया ड्रामा स्कूल पढ़ने, फिर मैं जब शिमला से चंडीगढ़ चला गया तो फिर मैं दिल्ली पहुंच गया, फिर दिल्ली से बॉम्बे आ गया। तो सपने जो हैं, एम्बिशन रहना चाहिए, ग्रीड नहीं। The difference between greed and ambition is that with ambition you keep climbing the stairs. So I keep having this ambitious. I never thought that in a convention center I'll be able to speak to so many people. I'm not a professional motivational speaker. My life is my motivation and that's what I share. And that's what is life. So everybody's life is motivational. I believe that everybody, whosoever made us, God, जो भी है, भगवान, माता, भगवान, जो भी, जो अल्लाह, गुरु नानक जी, जो भी हमें बनाता है, जिसको भी हम मानते हैं, वो हमको इस दुनिया में एज ए स्पेशल इंसान बनाते हैं, बिकॉज हिज प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑर्डिनरी। हम अपने आप को स्पेशल नहीं समझते, और इसका प्रूफ ये है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। So that means everybody is special, everybody is extraordinary. So that is what I feel is the most important factor that we have to keep in mind. Yes. सर आप कौन सा तेल लगाते हो? हैं? जेल लगाते हो? Can I touch your hair? आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। I think we should give memories to people. ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, इनके लिए कर रहा हूं। अब क्या होगा, ये घर जाके इनके 10 पुश्तें आगे बोलेंगी कि हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी का हेयर स्टाइल अनुपम खेर ने अपने हाथ से टच किया था। We must make memories. Memories are very important. We have stopped making memories. I think we are back to normal. COVID is over, thank God. Lockdown is over, but we forgot what we felt. Sorry, you asked the question. सर हाल ही में आप एक मूवी कर रहे हो। Mike. हाँ चल, thank you. सर हाल ही में आप एक मूवी कर रहे हो जो आपका 538 मूवी है, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर फिल्माया गया है, जिसमें आप गुरु जी का किरदार कर रहे हो। तो सर ये किरदार निभाते आपको I can't answer this question because I'm under contract. So I can't speak about this. I wanted to achieve the look, that much I can share, that I wanted to achieve the look and the body posture as close to as Gurudev, and I was very happy that I managed to do that. But more than that, I can't talk about that project. Yes, sir. बट द क्वेश्चन जो आपसे पूछते थे वो फिल्म के बारे में नहीं, बट उनका क्वेश्चन ये था उसमें से कि उसमें से आपने क्या मोटिव हमारे उसमें से I know, but I still won't be able to talk about it. ओके सर, एक आपका और एक टॉपिक मैंने काफ़ी बार सुना है, दैट हाउ टू डील विद एडवर्सिटी। काफ़ी कठिनाई है, काफ़ी मुश्किलें रोज़ जीवन में आती है। हमारे रियल्टर्स भाइयों को भी कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, कोई डील क्लोज करने में, कहीं क्लाइंट को कुछ पिच करने में। तो ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलें रोज़ जीवन में हम कैसे इससे उभर सकते हैं, कैसे इससे हम बाहर आ सकते हैं, इसके ऊपर कुछ अगर आप हम हमारे ऑडियंस को या रियल्टर्स भाइयों को कुछ। Your voice is echoing. I couldn't understand the question. What was the question? So हाउ for टू डील विद एडवर्सिटी। How to deal with adversities? By laughing at them. Yeah, I mean, I know that people will think it's easier said than done. What can you do about it? As I said to you that my grandfather used to say, don't go through a problem twice, once by thinking about it, once by going through it. I'm an eternal optimist. मैं पूरा आशावादी इंसान हूँ।
मेरे हिसाब से ऑप्टिमिज्म की अल्टीमेट डेफिनेशन इज नथिंग इज ऑल रॉन्ग, नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे। एक घड़ी जो रुक गई है 12:30 बजे पर या 11:20 पर, दिन में 2 बार 11:20 तो होते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वर्क हार्ड एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल। कल मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, अगर कोई आपको, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आपने सवाल, अगर कोई आपको 10 करोड़ रुपया दे, नहीं चलो 100 करोड़ रुपया, शायद 10 करोड़ आपके पास होंगे अगर कोई आपको 100 करोड़ रुपया दे और आपसे ये कहे कि सुबह आप उठोगे नहीं, आप क्या करोगे? नहीं लूंगा। नहीं लेंगे ना। तो इसका मतलब आपके लिए सुबह उठना 100 करोड़ के बराबर है। बस इसी बात से खुश हो जाइए। सो गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि लास्ट ईयर हमने इतना इनकम टैक्स भरा था इसलिए इस समय इतना ही भरा। नो, आई डिसाइड, या लास्ट ईयर हमने इतना कमाया था, इस साल हमने इतना कमाया। ऑफ कोर्स यू विल वांट टू कीप मेकिंग प्रोग्रेस, बट इफ यू थिंक that you started your business with 11,000 rupees and today you have 1 lakh of rupees, it's still a great situation. मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। आज से 8 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया, आई डोंट वांट टू बाय अ हाउस। आपको यकीन नहीं होगा या शायद यकीन होगा, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैंने 8 साल पहले डिसाइड कर दिया कि मैं ये झंझट ही निकाल दूंगा, किराया तो जितना मेरे पास होगा मैं उतना दे दूंगा। So I am the most liberated person in the world because I don't want to spend money on buying a house. And उसके बाद फिर मेरे बच्चे, मेरे कजन ब्रदर के बच्चे, ये घर में मेरा हक कितना है। Better is to whatever money has, give it to him and get over with it. If we remember our childhood with our siblings, those are the best memories ना। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे भाई बहनों के साथ कितनी बनती है, और धीरे धीरे जैसे हम बड़े होने चले जाते हैं हमारी बिगड़नी शुरू हो जाती है। दैट्स सच ए ट्रेजेडी। मेरे भाई के साथ मेरी इसलिए बनती है क्योंकि मेरे को पैसों के साथ उसका कोई टेंशन नहीं है। मैंने अपने जो मेरे ऑफिस का इंचार्ज है उनको बोल दिया कि मेरा भाई जो पैसा मांगेगा या जितना मांगेगा या जो भी कुछ है उसको दे देना, बिकॉज मनी शुड नॉट कम इन बिटवीन अस। सो व्हेन यू थिंक लाइक दैट यू फील लाइफ इज सो वंडरफुल। सो जो भी परेशानियां आती हैं, हमारी जो अंदर की, जो हमारे हाथ में है खुशी, और हम उसको हाथ से निकलने देना चाहते हैं। तो ये मैं सिर्फ मंच पे बैठ के ज्ञान की बातें नहीं कर रहा, मैं हमेशा से ही ऐसा था। एंड दैट इज बिकॉज दादाजी ने कहा था कि इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। थैंक यू सो मच। मजा आया मुझे बोलने में। सर, आपने 500 से भी ज़्यादा मूवी किए हैं, जिसमें आपने कॉमेडी रोल भी किए हैं, नेगेटिव रोल भी किए हैं, फैमिली मैन के हिसाब से भी आपने काम किया हुआ है, ब्यूरोक्रेट करके भी काम किया हुआ है। तो ये सारे कैरेक्टर जो थे सर, तो पर्सनली मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि आपको उसमें कौन सा किरदार अच्छा लगता है करने के लिए और क्यों? अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग किरदार अच्छे लगते हैं। आई लव माई जर्नी, जिसमें जो मैंने बताया कि जैसे 540 फिल्में, उसमें बहुत सारी फिल्में शायद बहुत कमाल की नहीं थी, मतलब बिल्कुल नहीं थी। 80% फिल्में जो होती हैं, मुझे लगता है लाइफ इज़ 20% एक्साइटमेंट एंड 80% मोनोटनी। हम रोज़ एक खाना खाते हैं और फिर एक दिन कहते हैं कि आज हम डिफरेंट किस्म का, आज हम नया स्पेशल बनाएंगे। सो मेरे लिए सुबह निकलना काम के लिए और काम करके वापस आना बहुत बड़ी बात है। बट फिल्म लाइक सारांश आई होल्ड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिल्म लाइक खोसला का घोंसला इज क्लोज टू माई हार्ट फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न। फिल्म लाइक वेडनेसडे इज क्लोज टू माई हार्ट फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न। फिल्म लाइक कश्मीर फाइल इज माई मोस्ट फेवरेट फिल्म because it tells me the story of my ancestors, of my grandparents, of my parents. So I enjoy
doing the idiotic films also, because it's work. I enjoy the most stupidest films also. They are part of my journey. And for me, journey is much more important than destination. आपको मज़ा आना चाहिए. अब जो मैं यहाँ पर बैठा बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि I could have easily done, हाँ जी फिर बस फिर ऐसा हुआ. But I am actually having fun with you because I am also learning something. I'm learning from you. I'm learning from you. I'm learning from even people who are sitting over here, because I am somewhere identifying and they are identifying with their life. Now today, right now at this moment, जबकि 14 मिनट और 46 सेकंड बाकी रह गए हमारी कॉन्वर्सेशन में, ये 2 घड़ियां आपने यहाँ लगाई हैं, टेंशन दे रही हैं मुझे कि मेरे पास 14 मिनट रह गए हैं, तो मैं कोई बात नहीं. बट द पॉइंट इज एवरी एक्सपीरियंस शुड बी एनरिचिंग. I'll tell you that you must make conversations. Unfortunately, in today's time, we talk at people, we don't talk to people, you know. और मैं तो दिन में जब ये कोविड वगैरह हुआ था, ये सब हुआ था, तो मैंने अपने एक बच्चों की 10th ग्रेड की फोटोग्राफ निकाली थी. उसमें 47 या 57 स्टूडेंट्स थे. मैंने सबको फ़ोन किया था. I make connections, I'm people's person, I like people. And I don't intellectualize things. I don't, because it's okay to say I don't know. People don't say I don't know. और I don't know की ताकत बहुत कमाल की है ना? हाँ जी. सर हमारे अगर ज़्यादा सवाल बचे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जल्दी खत्म कर सकते हैं. काफी बचे. अच्छा, नहीं तो ऑडियंस में से भी 2-4 सवाल सर, हम ले रहे हैं. अच्छा, हम ले रहे last हैं. 7-8 minutes. ओके, हाथ को नीचे करो, शांत हो जाओ. सर हमारे एसोसिएशन का टैगलाइन है टुगेदर फॉर एवर. टुगेदर फॉर एवर. टुगेदर फॉर एवर. राजश्री प्रोडक्शंस का लगता है. हाँ. सो हमने टैगलाइन दिया था 1997 में. हम साथ साथ हैं. हाँ, हमने टैगलाइन दिया था 1997 में. हाँ, नाइस. आई हमारे लाइक दैट, founder- टुगेदर फॉर एवर. ये लगता है कि ये फैमिली, लगता है कि टुगेदर फॉर एवर है. ये मानना पड़ेगा, सच में ऐसी एक फीलिंग आती है. सो सर हमारी एसोसिएशन बिलीव करती है टीम बॉन्डिंग, टुगेदरनेस. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को टीम बॉन्डिंग या ये टुगेदर फॉर एवर की टैगलाइन को लेके? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देर आर सर्टन रिलेशनशिप्स विच आर लाइक ए पॉज बटन ऑन ए टेप रिकॉर्डर. आपने 15 साल पहले अगर पॉज बटन दबा दिया है, मगर आप वो दोबारा दबाते हो तो वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपने छोड़ा था. तो ये रिश्तों की खासियत है. आई बिलीव ए लॉट. मेरे साथ जो ये बंदा, ये दत्ता सावंत जो है, जो वीडियो खींच रहा है, ये दत्तू हाथ ऊपर कर, ये मेरे साथ 39 सालों से काम कर रहा है. My person who is CEO of my office is working for me for the last 20 years. My childhood friend, who was my best friend, is my friend for the last 53 years. I believe in relationships. I believe, और मेरे दोस्त सतीश कौशिक जी 42 साल मेरे दोस्त थे. उसका एक डायलॉग था, मतलब हमारी एक फिल्म में एक डायलॉग था कि अगर दोस्ती ज़्यादा देर तक कायम रखनी है तो दोस्त की कुछ खामियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए. हर चीज़ को प्रूव, ये ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. रिश्ते जो रिश्तों में होते हैं, पीपल हु ईट टुगेदर, लिव टुगेदर और स्टे टुगेदर. आई थिंक द रिचनेस of your life is not how many cars that you have, how many houses that you have. The richness depends on how many friends do you have, how many people do you have know each other. कितने रिश्ते आपने कमाए हैं? कितने लोग ऐसे, कितने लोग हैं जिसको आप रात को 3 बजे भी फोन कर सकते हो? अगर आप 5 लोगों को गिना सकते हैं तो आपसे ज्यादा अमीर कोई इंसान है ही नहीं. Anybody from the audience? अरे बहुत Of सारे, course, थोड़ा I ऐसा. know. This is a fun banter. We would like to stay towards lighter conversations. So, this is Mr. Sameer. Anupam sir, you are both an icon and a legend, and it's been absolutely phenomenal to hear you. बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. मैं एक्चुअल में खुद भी बहुत विश्वास करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है. जी जी. लेकिन मेरे को आप अपना सर और मेरा सर देखिए और मेरे को बताइए कैसे हो सकता है. मतलब सर के अंदर क्या है या सर के बाहर क्या है? ऊपर बाल का. आई नो मैं बाल बचूंगा उसके बाद में.
देखिए दूसरा- सर, there are only two kinds of men. अब मैं बोलना नहीं चाहता. बॉल्ड एंड हैंडसम. मैंने एक टी शर्ट मुझे किसी एक फैन ने दी थी. मैंने वो टी शर्ट पहनता था, उस पे लिखा था आई एम टू सेक्सी फॉर माई हेयर, दैट इज वाई इट इज नॉट देयर. फैंटास्टिक. गॉड मेड फ्यू परफेक्ट हेड्स, रेस्ट ही कवर्ड विद हेयर. आपका बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है जी. आपने जो थोड़ा सा लेफ्ट से ज्यादा सर मेरा मांग पीछे के- बहुत है सर. हाँ अच्छा है, आपने थोड़े पीछे से बाल बढ़ाए हैं. करेक्ट सर. तो मैं आप तारीफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिर्फ आगे कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरा एक और आपसे जो मेन सवाल ये है कि खोसला का घोसला is an absolute phenomenal movie that you made. I I've agree. actually watched it multiple times because something like Saransh is a piece of art which which remains with you. जी. But if you want to have fun time, Khosla ka Ghosla, and the broker fraternity जो आज रियल्टर्स बन गए हैं, जो आज 1500. बाय द वे व्हेन यू टोल्ड कि आपने आज तक घर नहीं खरीदा है, 1500 पीपल वही मेरे को इनको 1500 पीपल नो यू आर अ पोटेंशियल क्लाइंट, सो वी विल बी इन टच विद यू. सो दैट इज हाउ द रियल्टर्स थिंक. तो जो मुझे मुफ्त में घर दे देगा मैं सबका ले रहा हूँ. वंडरफुल. मैंने इनसे जूम पे कहा था, जूम कॉल में इन्होंने कहा था कि आप कुछ इस बारे में बात करना. मैंने कहा आई एम द वर्स्ट पर्सन. डोंट, रियल एस्टेट वालों के लिए मैं नाइटमेयर हूँ. ये तो घर में विश्वास ही नहीं करता है. मगर आप अपना अच्छा काम करते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लाइक खुराना साहब ऑफ घोसला का घोंसला. So personally, what do you enjoy most? Serious genre or comedy? I know you say you love your work, but personally, No, I given a think choice, making people laugh is very gratifying. I love comedy because it's very difficult to do. It's very difficult to make people laugh. Very, very difficult. जैसे आप क्राउड में जब आप हंसते हैं तो आसानी से हंसते हैं, पर जैसे चलिए एक सेकंड के लिए सर आप आइए ना, ब्लू शर्ट वाले भाई साहब आप आइए मंच पे. डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं करना है. नाउ एवरीबडी नोज हाउ टू लाफ. आइए, क्या नाम है सर आपका? आज अगले फंक्शन में सब आगे वाले कहेंगे मुझे पीछे बिठाना. नितिन संघवी. नितिन साहब, I was watching you laughing quite a bit, and so you can laugh, okay? We can go through all the emotions. 9 के 9 रस जो हैं हम अपनी जिंदगी में सब इस्तेमाल करते हैं. हम रोते भी हैं, हम क्रोधित भी होते हैं, हम हंसते भी हैं, हमको अच्छा भी लगता है, हम श्रृंगार बस भी कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एक्टर्स एंड रियल लाइफ पीपल इज दिस. अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हंस के दिखाइए, सिर्फ हंस के दिखाओ. सिर्फ हंस के दिखाइए. सर कुछ एक्टिंग तो कीजिए तो हंसू ना मैं. उसके मैं अलग से पैसे लूंगा. तो ये लोगों ने कवर पैकेज है ना, ये लोग का ऑलवेज पैकेज रहता है सर. यार इतने सस्ते में नहीं आया मैं पैकेज में. सर हम डेवलपर फ्री में कुछ नहीं करते मैं हैं. आपसे बोल रहा हूँ, देखिए आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ पॉइंट फॉर देम, दैट्स व्हाई जस्ट लाफ. हा. हो. सत्यानाश कर रहे हैं. So what I'm trying to say, it is my thank you so much. Basically just wanted to prove a point that it is the most difficult. इनके लिए ताली मारिए सब लोग. It is the most difficult thing in the world is to make people laugh, because laughter is physical, tragedy is internal. When you are watching a movie and you identify with something sad and tragic, you can cry silently. आंसू बह रहे हैं, आप अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं, आप चुपचाप जो है उसको आंसू पोंछते हैं और साथ वाले को पता लग जाता है कि आप रो रहे हैं, मगर आप साइलेंटली रो सकते हैं. मगर आप साइलेंटली हंस नहीं सकते. हंसना इज वेरी फिजिकल. यू फर्स्ट स्माइल विच इज फिजिकल, यू देन शो योर टीथ विच इज फिजिकल, then you produce a sound which is physical, then you laugh a little more. तो ये सब कुछ जो है वो फिजिकल है. But laughter has a lot to do with breathing. तो आज मैं आपके साथ इतने सामूहिक तौर पर एक लाफ्टर की एक्सरसाइज करता हूं. ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते समय हाह की आवाज निकालना. ओके, हाह करना है. फिर मैं ऐसे करूंगा तो 2 बार हाह करना है, मैं ऐसे करूंगा तो 3 बार हां करना है, मैं जितनी बार करूंगा ऐसे करना है. ओके, ब्रीद इन,
Breathe in. 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 तो अगर मैं यहां बैठे 2000 लोगों को एक साथ हंसा सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है. Thank you. So we So I have, like comment. I like to make people laugh. Yes. Thank you so much, sir. we have another question over here very quickly. Priyank? Yes, sir. Hello. Yeah, sir. Basically, I am from Area Group, and Area Group has always been a bonding. Means we have a good bond around. But frankly speaking, we have seen your bond with Anil Kapoor and Satish Kaushik at a different level. So can you share some incident about you three which we can elaborate and we can use in a real life to keep that bond lifelong? Honesty. In a relationship, you need to be honest. Even if honesty is painful, honesty, and you cannot, you have to be दोस्त को पता होना चाहिए कि इसने ये बात मुझे दिल दुखाने के लिए नहीं बोली है, मेरे भले के लिए बोली है. In any relationship, in a father-son relationship, in a mother-daughter relationship, in a husband-wife relationship, in any relationship, in a friend relationship, the most important thing is honesty. If you are not honest, then that relationship, that's why माँ और बेटे का रिश्ता या माँ और बेटी का रिश्ता, माँ का रिश्ता सबसे honest, ज़्यादा honest होता है. Because माँ को कुछ नहीं चाहिए होता. Yes. Yes, sir. Can we have the mic, please? जो माइक वाले दोस्त हैं वो जरा थोड़ा तेज तेज दौड़ें. हाँ, प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए. हेलो जी, सर. वहाँ पे. सर, मैंने आपका एक गीत सुना था लम्हे में, आपने गाया था मेरे ख्याल से कभी कभी. सो हम लोग तो एकदम. सर, कैन वी इंक्रीज द वॉल्यूम? वॉल्यूम बढ़ा Hello. सकते हैं? सर, आप थोड़ा आगे आ जाइए, please. ओके ओके. जी. हाँ जी. सर, आपने एक गीत गाया था लम्हे में, लम्हे मूवी में कभी कभी. तो मैं चाहता हूँ आप 2 लाइन शायद यहाँ पे भी सुना सके. लम्हे फिल्म की 2. लम्हे में इन्होंने एक गीत गाया था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल है. अच्छा. सो वो गाना अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा. इसके पैसे नहीं मिले. इसके पैसे नहीं मिले. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में. क्या टेस्ट कर रहे थे क्या? So, we have so one last one from your Last right, question? from your left side, Okay. left side to you. Okay. Your Yes, left side here. Yes, please, mic, please. Yes. Anupam sir, can you see me? Yes, I can, sir. My name is Tanuj Nagrani. I am from Pune. One reason I'm here in Mumbai today because when this video of Evolve came in, it had your video. And I encouraged my friends like Umesh, Udayan, Mahesh and so on to come here because of you. Now the MC on stage said that she is a 90s kid and she has memories of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, which even I have. I'm from the 80s, 89. But you know one memory that you have etched with me is your stories on Instagram with your mother. She is one of the most warm ladies that I could even feel. In fact, your relationship with her was one of the most warm things that I could see from Instagram. So I lost my mother in 2016, but you left a wonderful memory etched on my life, looking at the way you are with your mother. And I wish her the very, very best. May God bless her with the best of health. Thank you. And your relation. Thank you. My father passed away on the 10th of February 2012. At that time, my parents were married for 59 years. 59 years is a long period to be married
to somebody, and when you lose your husband or your wife, you don't lose only the husband or the wife, you also lose a habit. You lose a partner, you lose a friend, you lose somebody who you fight with, you lose a person who you see around. So, and I knew that obviously it's going to be impacting my mother. So I decided that instead of mourning my father's death, at the prayer ceremony, I will celebrate his life. So for the Chautha, I decided, and I spoke to my brother, that instead of having this prayer, like कीर्तन और भजन, जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर हम वो नहीं करेंगे. हम अगर हमारे पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा चौथा सेरेमनी कैसे किया है, he should be entertained. So we decided to have a rock band. We invited a rock band and we sent a message to everybody that please don't wear white clothes, wear colorful clothes, and if you have a funny story about my father, please tell it to the world. But the story has to be funny. So I asked my mother, I said, this is how I'm planning to do the Chautha ceremony. Is it okay with you? He said, I don't know what you are doing. So जब वो ceremony हुई, तो लोग रंग बिरंगे कपड़ों में आए, रॉक बैंड ने उनके पुराने गाने सुनाए फास्टर बीट पे, और मैंने और मेरे दोस्तों ने और मेरे रिश्तेदारों ने पिताजी की हंसी वाली कहानियाँ सुनाई. At the end of that ceremony, my mother started smiling and laughing. And at night she told me, thank you beta, you made me realize that I was married to a great man. So then her life became easy. May you always keep surprising her when she is cooking in the kitchen. I think since you spoke about my mother, I think the most important thing that you must know, and I'm sure you know, is the importance of our parents in our lives. That is the most important than how to make money, how to sell your flat, how to do this. If your parents are not happy with you, then आप जिंदगी के सबसे rich इंसान भी बन जाओ, सबसे कामयाब businessman भी बन जाओ, you are not the right person. So I would like to believe that I am very rich because my mother is very happy with me. And I make her happy. Every day in the morning at 7:30 she calls me up, and if I don't pick up the phone even by 2 minutes she calls me again, because basically she is wanting to know मैं ठीक हूँ कि नहीं. ये बहुत अच्छा है. I don't know how many times do you call up your parents to find out, and how many times do you tell your parents that I love you. We don't. We don't communicate. We take it for granted. The people we take out for granted the most is our parents. We should not. We should every single day or every alternate days actually call up or tell them, Dad, Mom, I love you. It's the simplest thing. Anyway. Very quickly, last question, please. Sir, last question. हेलो सर, आपकी और सतीश जी कौशिक की बहुत अच्छी दोस्ती एक बहुत बेमिसाल है. तो सर एक रिक्वेस्ट है कि कुछ दोस्ती के ऊपर कुछ अच्छे शेर और शायरी या कुछ अच्छा मोटिवेशनल दोस्ती के लिए कुछ मैसेज दीजिए सर. दोस्त का मेरा जाना बड़ा गहरा है, अंदर तक है सर. उसके ऊपर मैं बोलना मज़ा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि वो सच है, वो तकलीफ सच है, वो भी मेरी आदत थी. बट I feel that to have a friend like Satish was the blessing, and I'm blessed. I miss him. Thank yes. you. सर लास्ट क्वेश्चन. भारत सावला सर, फेलियर के लिए मुझे आपसे एक ओपिनियन सवाल का जवाब चाहिए था. जी जी सर, मैं खुद 10वीं आप में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है. सर कैसा होता है, ये अलग क्वेश्चन है. मैं खुद 10वीं में फेल हूँ, ठीक है. तो मैं खुद रियल्टर हूँ, हमारी 2 ऑफिस है, कांदिवली बोरीवली. सो अभी मैं लास्ट 3 साल से सोच रहा था कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए. जब भी मैं फेल हुआ था तभी मुझे रियलाइज़ होता था, जब मैं सब लोग जाते थे कॉलेज, यार मैं पास होता तो मैं भी जा सकता था. तभी एज मेरी 17 थी. फिर काम धंधे पे लग गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. तो लास्ट 2-3 साल से मैं सोच रहा हूँ, जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे तो मैंने उनको मोटिवेशन के लिए मुझे भी एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है. तो अभी आपका क्या कहना है, मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए? किसको टाइम नहीं मिल रहा है? मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या होगा, कोविड के बाद हमारा धंधा एकदम तेजी से बढ़ गया. 2021 में हमने एक ऑफिस खोला, वो भी सक्सेस हुआ. 2022 में एक ऑफिस खोला, वो भी सक्सेस गया. तो अभी टाइम ही नहीं मिलता है. फिर भी एक विचार हो रहा है कि एग्जाम देना है कि नहीं. एज लॉन्ग एज आपके बच्चे जब आप घर जाएं आपको पहचाने, वो बहुत ज़रूरी है.
तो आप उनके साथ क्योंकि जरूर वक्त जैसे आपके गुजारिए। पेरेंट्स से वैसे हमारे पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से कभी आपको डांटा नहीं, जैसे हमारे पेरेंट्स से भी कोई हमको डांटा नहीं कि 10वीं फेल है, जैसा चलता है ऐसा चलने दे। जब भगवान, मैं प्रार्थना करूंगा सब ठीक हो जाए आपके जी Thank you, sir. Thank you so चलिए, much. that's the end of it. Can we please have a huge round of applause? जोरदार तालियां हो जाए एक बार. one second. But before that, one moment. हाँ जी देखिए, sir. अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो में आपको एक्टिंग करनी है, बट आपके जज्बात अंदर से भी निकलेंगे। आपको ऐसे तालियां मारनी जैसे आप मेरा लेक्चर सुन के पागल हो गए। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक ए पिक्चर विद द चीफ गेस्ट बिकॉज आई वॉज अ लिटिल, आइए एक सर आपके साथ तस्वीर लेना चाहूँगा। आइए सर, इस तरफ। I saw you at Macy's in New York. In the basement, you were wearing a long coat, black coat. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. What's You your were good name? act- a few years ago. ओके, थैंक यू। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप इधर रहिए सर, आप सेट पर ही रहिए, सेट पर, आप स्टेज पर रहिए सर, ऐसी क्या बात है। लेक्चर खत्म हुआ। Yes, yes, yes. First one with the lady. एक बार प्लीज जोरदार तालियां हो जाए फॉर अनुपम जी. We love having you here with us. Such an honor, such a pleasure, and what a lovely person. हम सबकी तरफ से आपको और दुलारी जी को बहुत 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 प्यार. Thank you sir for joining us. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. We have a memento for you sir. Thank you. Bye. Thank you so much, sir, for joining us today. Ladies and gentlemen, that was Mr. Anupam Kher, and I request you all to please give him a huge round of applause for being here with us and sharing such beautiful thoughts and words.